looking forward to another exciting session, I would like to request our team member Abhishek to introduce our next panel of speakers for the day, who will be speaking on the topic behind the product, what craft interventions really look like on ground. Thank you, Rashi. I feel privileged to be hosting this session here. If you ask me or any of my fellow team members at Project Virasat, that what is the one thing that has given us the will to persevere in our strenuous journey to revive India's craft forms, I can assure you that all of our answers are going to be the same. It is the love that our artisans shower on us. What we treasure the most is going on ground to meet our communities. Interacting with our artisans gives us immense motivation to continuously step forward in the journey of holistically reviving our craft. Ladies and gentlemen, we are incredibly proud and fortunate to have three trailblazers of this industry, Mr. Nand Kishore Chaudhary, Mrs. Payal Nath, and Mr. Paresh Mangalya on our esteemed panel today, who have worked with the artisans at the grassroots level to transform their lives and revolutionize the craft sector of the entire country. I feel privileged to tell you that we have the founder of Jaipur Rugs, Mr. Nand Kishore Chaudhary, the Gandhi of the Indian craft industry, a social impact awardee who started his journey on a cycle with 2 looms, 9 artisans, and a mere capital of rupees 5,000. But with his indomitable spirit and extensive hard work, he has fabricated Jaipur Rugs, a company which has over 20 branches across 6 states of the country and provide livelihood to over 40,000 people working from 600 plus villages. It gives me immense pleasure to welcome you, sir. Our next speaker is Mrs. Payal Nath, the co-founder of Kadam and Kadam Heart, a physics graduate from University of Delhi who, with a selfless motive of benefiting the underprivileged, set out on a journey of numerous hardships. A mentor at National Institute of Fashion and Technology, Kolkata, and a nominee of Amazing Indian Award, she is the woman behind the vision of creating self-sustainable craft enterprises, which supports over 5,000 livelihoods under 16 craft lines and 500 producer groups across 4 states of the country. We welcome you, ma'am. We are proud to welcome our next speaker, Mr. Paresh Mangalya, Deputy Director at Khameer, a space for engagement and development of the region's rich creative industries and a winner of International Craft Awards 2017. We are privileged to have among us one of the visionaries who, after the devastating impact of the earthquake of 2001, had a will to indemnify the artisans of Kutch and started Khameer. Khameer today has 14 crafts with 350 units and 1,060 artisans from the entire Kutch region of Gujarat. We welcome you, sir. Thank you so much, ma'am and sir, for joining us at the Craft Conclave 2021. We are super excited to listen to your journeys and gather your insights on how exactly craft intervention look like on ground. Starting with this discussion, sir, NKC, sir, you left a job at a nationalized bank to start with a loan of rupees 5,000. आपको social exclusion भी देखना पड़ा, फिर भी आपने हार नहीं मानी. We'll be very grateful, sir, अगर आप अपनी inspiring journey को narrate कर सकें. आपने कैसे शुरुआत करी, क्या क्या challenges आए, how did you overcome them? अगर आप उस सब के बारे में हमसे कुछ share कर सकें तो. सर्वप्रथम मैं आदित्य अग्रवाल को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सभी लोगों से मुझे मिलने का, बातचीत करने का मौका दिया. मैंने अपना ग्रेजुएशन करने के बाद में एक नई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया. उसका नाम था यूनिवर्सिटी ऑफ हार्ड रॉक्स ऑफ लाइफ. और मेरी जो रियल एजुकेशन उसी यूनिवर्सिटी से शुरुआत हुई. और आज आपसे मैं जो अपने अनुभव शेयर करूंगा वो उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते पढ़ते मुझे हुए सारे अनुभव. आज के 43 साल पहले मैंने अपने कैरियर की शुरुआत एक दुकान से की जो मेरे पिताजी चूरू शहर में चलाते थे. ब्रांडेड शूज की दुकान थी. लेकिन मैंने देखा है कि सेल्समैनशिप में मेरा मन ज्यादा नहीं लगता था. और उसी दौरान मुझे एक सरकारी बैंक में परमानेंट कैशियर की नौकरी मिली. मैंने बैंक को धन्यवाद का पत्र लिखा कि आपने मुझे इस लायक समझा और मैंने नौकरी ज्वाइन नहीं की.
इसके बाद में मैंने सोचना शुरू किया, इंट्रोस्पेक्शन शुरू किया कि मेरी नेचुरल कैपेबिलिटीज क्या है, हु एम आई, मैं कौन हूं, मेरा पैशन क्या है। तो मुझे समझ में आया मैं एक पीपल पर्सन हूं और नेचर में समय गुजारना ज्यादा अच्छा लगता है। तो उस वक्त काफी जानकारी करने से पता चला कि उस वक्त इंडिया में कारपेट की एक्सपोर्ट में बहुत मांग थी। तो मैंने सोचा इसी धंधे से मैं अपनी शुरुआत करूं तो मुझे गांव में जाने का मौका मिलेगा और मुझे ऐसे लोगों से काम करने का मौका मिलेगा जिनको कोई नहीं पूछता। तो मैंने अपने पिताजी से 5,000 रुपए का लोन लेकर 2 लूमें खरीदी और एक पुरानी साइकिल खरीदी जिससे वीवर के घर पे जाता था मैं, और इस कारपेट के धंधे की शुरुआत की। जब मैंने इस धंधे को शुरू किया तो सबसे पहला जो चैलेंज आया वो चैलेंज था फ्रॉम माय ओवन फैमिली मेंबर्स। परिवार के लोग बोले कि ये जो सारे जो काम करने वाले लोग हैं ये अनटचेबल हैं, अछूत जाति के लोग हैं, तो हम इनको घर पे नहीं आने देंगे। फिर मोहल्ले वाले बोले हम मोहल्ले में नहीं आने देंगे। फिर सगे संबंधी दोस्त जब किसी फंक्शन में पार्टी में मैं जाया करता था तो हाथ मिलाने से इनकार कर दिया करते थे कि तुम तो अछूत लोगों के साथ काम करते हो। तब मुझे समझ में आया कि एक आदमी की पहचान जाति से कैसे हो सकती है। एक आदमी की पहचान तो उसके कर्म, उसके शुद्ध कर्मों से होनी चाहिए। लेकिन उस वक्त मुझे यह भी ध्यान में आया कि जिस समाज में मैं रहता हूं, जिस परिवार में मैं रहता हूं, उसमें हिपोक्रेसी कितनी है। आदमी घर पे कुछ हो रहा है, मंदिर में कुछ हो रहा है, ऑफिस में कुछ हो रहा है, अकेला होता तो बिल्कुल अलग ही होता है। लेकिन इतने विरोध के बावजूद भी, इतने चैलेंज के बावजूद भी मेरा जो प्रेम था वो वीवर और वीविंग के प्रति लगातार बढ़ता जा रहा था और मैं अपना पूरा समय वीवरों के साथ ही बैठ के देता था। मैं ऑब्जर्व करता रहता था कि वीवर किस तरह काम करते हैं और मैं अपना दोपहर का खाना भी वीवरों के साथ ही खाता था। तो 9 साल तक आई वर्क एज ए कॉन्ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर। उसकी वजह से मुझे कारपेट की जो वीविंग की बारीकियां थी, वीवर के बारे में काफी अच्छी समझ आई। उसके बाद मैंने अपना खुद का एक्सपोर्ट करने की सोची। तो मैं अपने भाई के साथ मिलके मैंने जयपुर आकर एक्सपोर्ट कंपनी की शुरुआत की और मैं 3 साल जयपुर में रहा। लेकिन उस दौरान कारपेट की, इंडियन कारपेट की इतनी मांग थी कि इंडिया में जितने जो वीवर थे वो उस डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो मुझे और ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए था। तो 3 साल जयपुर रहने के बाद में मुझे ये पता चला कि गुजरात का एक ट्राइबल बेल्ट है, वलसाड, डांग और नौसारी डिस्ट्रिक्ट, जहां पर वहां की सरकार ये कोशिश कर रही है कि ट्राइबल लोगों की बेरोजगारी दूर हो और कारपेट वीविंग के लिए वो उनको सिखाना शुरू कर रही थी। तो मैं जानकारी करने के लिए उस एरिया में गया। तो जब पहले दिन उस एरिया में गया तो वहां के लोकल लोगों ने मेरे को बोला कि ये जो ट्राइबल पीपल है they are not very welcoming for the outsider, और आप अगर इस एरिया में काम शुरू करोगे तो ये आपका कुछ भी कर सकते हैं। दे कैन बीट यू, दे कैन, आपके मतलब वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उस वक्त मेरा एक अंग्रेज दोस्त था जो लंदन से हर साल जयपुर आता था, एंड एक्सपर्ट ऑन द पेंटेड वॉल्स ऑफ शेखावाटी। वो मेरे घर पे ही खाना खाता था। तो जब कोई परेशानी आती है तो हम उसको पूछते थे। मैंने उसको पूछा कि मुझे इस एरिया में काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो उसने बोला कि ये जो ट्राइबल लोग हैं दे आर द मोस्ट इनोसेंट पीपल इन इंडिया। बाहर के लोगों ने आके इनका शोषण किया, इसके लिए ये बाहर के लोगों से उनको वेलकम नहीं करते। तुम इनको लव, एम्पैथी और कंपेशन से डील करते हो, दैट विल बी योर बिगेस्ट लॉयल फोर्स। उसकी बात को मान के मैं उस आदिवासी एरिया में गया। उस एरिया में मुझे उन लोगों ने इतना पसंद किया कि 3 साल बाद दे स्टार्टेड ट्रीटिंग मी एज देयर गाइड एंड मेंटर। जब मैं वीवरों से मिलने के लिए जाता था गांव में
तो उनके घर वाले बाहर खड़े होकर मेरा इंतजार करते थे। मैं 8 साल तक गुजरात में रहा और वहां पर 8 साल में मैंने 15,000 ट्राइबल लोगों को इस कारपेट वीविंग का काम सिखाया। और उस वक्त मोबाइल फोन तो दूर की बात है, उस एरिया में तो लैंडलाइन भी नहीं होती थी। तो सरकार से मैंने परमिशन लेकर, वायरलेस की परमिशन लेकर, एक ऊंची पहाड़ी पे रिपीटर लगा के मैं पूरे एरिया में कम्युनिकेशन करता था। इस दौरान मैंने देखा कि जब मैं गांव में जाता था तो मैं देखता था कि एक वुमेन जो इतने कम इनकम में अपने घर को चलाती है, बजट को मैनेज करती है, बच्चों की एजुकेशन मैनेज करती है, हेल्थ मैनेज करती है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, एंड स्टिल टेक टाइम टू वीव द कारपेट। दे आर वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स इन द वर्ल्ड। उन औरतों के पास जो विजडम है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, जो मैनेजरियल स्किल्स है, दैट इज द बेस्ट। 99 में मैंने अपने भाई से अलग होके जयपुर कंपनी की बिल्कुल जीरो से शुरुआत की। और जब जयपुर कंपनी की शुरुआत की तो पहले 2 साल में मैंने जितना कमाया था वो सारा पैसा मैंने खो दिया। फिर मैंने सोचा कि व्हाट वेंट रॉन्ग। तो मुझे समझ में आया कि मेरी जो पास्ट सक्सेस थी, क्यों कारपेट बनाने में मेरा बहुत नाम हो चुका था ग्लोबली, तो वो नाम होने से ना मैंने मतलब फॉल्स फीलिंग को गुडनेस आ गई मेरे अंदर। और जब इंटरनेट पे सर्च किया तो पता चला एक मानसिक बीमारी होती है जिसको यूफोरिया बोलते हैं। तो फिर मैंने अपने पे काम करना शुरू किया। फिर मुझे समझ में आया कि अब मुझे ग्लोबल बिजनेस चलाना है। ग्रास रूट पे काम करने के लिए एक अलग लीडरशिप स्टाइल थी। अब मुझे बहुत नई स्किल सीखनी पड़ेगी। ग्लोबल बिजनेस चलाने के लिए मुझे अपने परसेप्शन को चेंज करना पड़ेगा, आदतों को चेंज करना पड़ेगा, सोच को चेंज करना पड़ेगा। फिर मैंने सीखना शुरू किया और वो दौड़ आज भी चल रही है। 2008 में एक बार मैं अपने ऑफिस में बैठा था, मेरे पास फोन आया। उन्होंने बोला आई एम सीके प्रहलाद। सीके प्रहलाद उस वक्त ग्लोबली नंबर 1 मैनेजमेंट गुरु थे। मैंने सोचा इतना बड़ा आदमी मेरे को कैसे फोन कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला मिस्टर चौधरी डू यू नो मी। मैंने कहा आपको कौन नहीं जानता। फिर उन्होंने बोला कि मिस्टर चौधरी आई वांट टू डू ए केस स्टडी ऑन योर बिजनेस मॉडल। तो मैंने उनको बोला सीके वी आर वेरी सिंपल पीपल एंड व्हाट एवर वी डू इज वेरी सिंपल। इसको पढ़ेगा कौन इस केस स्टडी को। फिर उन्होंने बोला योर ग्लोबल सप्लाई चेन इज कनेक्टिंग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअरेस्ट विद द रिचेस्ट ऑफ द रिचेस्ट बाय एनहांसिंग द कैपेबिलिटी एट द ग्रास रूट। फिर उन्होंने जयपुर की केस स्टडी की, 40 पेज की केस स्टडी की, जो आज दुनिया के टॉप कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है। उनकी केस स्टडी के बाद में हमें समझ में आई कि व्हाट वेंट राइट, जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पर हैं। एक तो हमारे 60 प्रोसेसेस हैं, तो पूरा वर्टिकल इंटीग्रेशन, मतलब सारी प्रोसेस पे या तो हम खुद करते हैं या उस पे हमारा पूरा कंट्रोल है। और एक डायरेक्ट वीवर के साथ हमारा कनेक्शन है। हम उनके डोर स्टेप पे सारा माल देते हैं और डोर स्टेप से लेते हैं। और आज तक मैंने किसी भी मिडल मैन के थ्रू काम नहीं किया। 2014 में हमने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया जिसको हमने नाम दिया मनचाहा प्रोजेक्ट। हमने हमारे वीवर को बोला कि आप अपने खुद के डिजाइन बनाइए। तो मेरी बेटी जो शिकागो में पढ़ी है और वह भी आज एक बहुत अच्छी ग्लोबल डिजाइनर है, वो जब मेरे साथ गांव में जाती थी तो बोलती थी पापा ये वीवर तो मेरे से भी ज्यादा क्रिएटिव है। तो मैंने उसको बोला तेरे को मैंने शिकागो में पढ़ाया, तेरे से क्रिएटिव कैसे हो सकती है वीवर ये। फिर उसने एक इनिशिएटिव शुरू की, कुछ वीवरों को चुना और उनको बोला कि आप अपने खुद के मन के डिजाइन के कारपेट बनाइए। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आज उनको 10 उनकी बनाई हुई डिजाइन को 10 ग्लोबल अवार्ड मिल चुके हैं। 2017 में बिमला देवी, जिसको गोल्ड कैटेगरी में जर्मन डिजाइन अवार्ड मिला, जो कभी अपने गांव के बाहर नहीं गई, जर्मनी वो अवार्ड लेने के लिए बेटी के साथ वहां पर गई। तो मैंने इन महिलाओं में इंसान देखा और मेरी बेटी ने इनमें एक क्रिएटिव आर्टिस्ट देखा। जो फ्यूचर विजन है जयपुर का वो है कि वी आर गोइंग टू क्रिएट द बेस्ट आर्टिजन प्रोपोजिशन
बेस्ट आर्टिजन प्रपोजिशन का मतलब यह है कि ईच एंड एवरी आर्टिजन ऑफ जयपुर विल बी द आर्टिस्ट एंड ईच एंड एवरी आर्टिस्ट विल बी कनेक्टेड विद द वर्ल्ड ऑफ डिजाइन। इससे उनकी डिग्निटी बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स द को क्रिएशन। थैंक यू। Thank you so much, sir. This was a journey truly full of inspiration. Thank you so much again. Fireman, you also started at a time when not many were talking about the craft in our country. And Kadam specifically has this model of creating self-sustainable enterprises. If you could narrate something about your journey, as in how did you start, where did the idea come from, what were the challenges and how you overcame them? Can you please, ma'am? थैंक यू अभिषेक। एक्चुअली जैसे एनके सर ने कहा कि यू नो व्हेन वी सी आप सबको यंगस्टर्स को वर्किंग इन दिस, इट्स सो इंस्पायरिंग एंड इट्स सो हार्ट वार्मिंग टू सी कि नई पीढ़ी इतने अच्छे से अभी आ रही है। पर ये भी सच बात है कि जब हम करते थे, जब हम इस लाइन में घुसे, और स्पेशली जब क्राफ्ट की कोई नॉलेज नहीं थी, कोई पढ़ाई नहीं थी, प्रोफेशनल फैमिली से थे, मेरे फादर फौजी थे, मेरे मदर एक प्रोफेसर थी जो कि सोशल वर्कर बन गई थी। तो एकदम क्राफ्ट सेक्टर का सिर्फ हम एक खरीदते थे सामान, उसके पीछे क्या चलता है क्या नहीं चलता, और उसमें बस हमें गरीबी दिखती थी, लेकिन उसको किस तरह से उसको डील किया जाए या क्या किया जाए उसके बारे में ना कुछ समझ थी। तो अब वो कि भाई आप पढ़ाई कर लें, प्रोफेशनल्स हैं आपके पेरेंट्स, तो आप बच्चे भी पढ़ाई करके अब यूनिवर्सिटी में, मैंने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी जैसे आप सब कर रहे हैं, और फिजिक्स पढ़ लिया। अब क्यों फिजिक्स पढ़ा, इतना भी नहीं ख्याल था। फिजिक्स इसलिए पढ़ा क्योंकि नंबर अच्छे आए थे, और उस फिजिक्स की लाइन जो थी वो सबसे छोटी थी, तो भाई अब वो फिजिक्स कर लेते, क्योंकि केमिस्ट्री करने का मन था लेकिन उसकी लाइन लंबी है। तो अब फिर इस तरह से यू नो हम लोग, हमारे जमाने में हम इतना सोचते ही नहीं थे। अब कर लिया, पढ़ाई कर ली, पढ़ाई करके भी एक अंदर से ना एक काइंड ऑफ अ थिंग टू कुछ मिसिंग महसूस होता था कि क्या इतने लोग गरीब हैं, और इतना सुंदर, मतलब मेरी मदर भी हैंडलूम साड़ीज पहनना पसंद करती थी। आई हैड सीन माय एंटायर फैमिली एंड एवरीबडी। फौजीज में, आर्मी में बहुत कल्चर है कि जिस जगह में पोस्टिंग होती है उधर की साड़ियाँ, उधर के कपड़े खरीदना और वहाँ पे ट्रैवल करना क्लस्टर्स में। तो शौक था हाउ डू वी ट्रांसलेट। और फिर ऊपर से एक चीज और थी, एक पर्सनल भी होती है अपनी कहानी, कि मेरा बचपन में हमेशा से पूछा करती थी मैं कि ये गरीब क्यों है, ये अमीर क्यों है, ये क्यों रो रहा है, ये इसको कोई मदद क्यों नहीं, भगवान ने ऐसे क्यों बनाया कि ये अलग है और ये अलग है। तो दिट वाज माय पर्सनल जर्नी प्रोबेबली। सो टू फिजिक्स कर लिया, उसके बाद में डेटा मैनेजमेंट पढ़ाई कर ली, लेकिन अंदर से देयर वाज समथिंग मिसिंग ऑलवेज, एंड आई वांटेड टू डू समथिंग वेयर आई वुड फील यूजफुल, you know, to the society, and something feel good about myself, about me as an individual. तो और एक कनेक्शन एक क्राफ्ट्स के साथ एक ऐसे जुड़ा कि थोड़ा लेट आया। उससे पहले मैंने एक इंडस्ट्री में काम किया फुटवेयर डिजाइनर के तौर पे, और मेरे जो बॉस थे वो एक इटालियन डिजाइनर थे, और वहां पे मेरी 40 कंट्रीज के डिजाइनर से मुलाकात हुई। और जब काम कर रहे थे तो उस दौरान में शू डिजाइन में जो प्रोसेसेस होते हैं उसमें हर एक प्रोसेस को समझना, और कितना इम्पोर्टेंट है एक प्रोडक्ट जैसे शू एक है, ऑल्दो इट्स एन एवरीडे यूज प्रोडक्ट, पर हर आदमी को जरूरत है यू नो पहनने के लिए। तो फंक्शनैलिटी तो है, लेकिन उसकी एस्थेटिक्स और सिर्फ उसको बनाने का प्रोसेस, जहाँ 1 मिलीमीटर का डिफरेंस भी उसकी जो फंक्शनैलिटी है उसको बदल सकता है। तो इस तरह की जो नॉलेज थी, हालांकि दिल नहीं था उसमें, लेकिन दिमाग में बहुत कुछ सीखा इनटू द प्रोसेस ऑफ वर्किंग इन द सेक्टर, यू नो इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जिसको हम बोलते हैं। और जब मौका मिला क्राफ्ट्स में घुसने का, वो शादी के बाद मैं घुसी, क्योंकि मेरे हस्बैंड कलकत्ता में पोस्टेड थे, और इसीलिए कलकत्ता में मेरे को कोई नौकरी नहीं मिली इस तरह से। और दिस वाज अ बून फॉर मी, क्योंकि इट गेव एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर। अब भाई कोई मेरे को अपनी तनख्वाह नहीं दे सकता, सैलरी नहीं दे सकता जिस तरह की मैं
मेरे को लगता है कि मुझे मिलनी चाहिए, तो मैं मैंने जो भी कुछ सीखा है मैं उन लोगों के साथ शेयर करूं जहां मेरी माँ किया करती थी, आर्टिसन से खरीद के किया करती थी, तो शायद मैं कुछ और कर सकूं। सो दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड। अब काम करते करते जब हम घुसे तो एक प्यार सा हो गया बनाने वालों से भी, क्योंकि वो हर एक चीज जो बनाते हैं उसके अंदर में दिल, बॉडी, माइंड, स्पिरिट, जब हाथ से कोई चीज बनती है तो हर एक चीज उसमें जुड़ के काम होता है। So to see that, and I realized that there were some people who were doing very good skill, and then some जो स्किल है लेकिन वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो मार्केट में बिकेगा, तो फिर वो दिल से नहीं आ रहा है या whatever, there was something missing जिसकी वजह से वो गरीब थे। Combining my skill जो मैंने नौकरी करते हुए सीखा था and with what this opportunity offered, तो हमने क्या किया कि ये जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको हमने उनको आर्टिसंस को बोलना शुरू किया, ग्रास से हमने शुरू किया। और ग्रास इसीलिए शुरू किया क्योंकि ये सबसे गरीब थे उस समय, 2006 की बात कर रही हूँ मैं, तब वो एक फैमिली जो है जो बास्केट की झुरी बनाती है उनको 8 रुपए मिलते थे एक झुरी के महाजन से, और वो 8 रुपए में बैम्बू की कॉस्ट भी इंक्लूडेड थी, और एक दिन में 2 पीस बनते थे ज्यादा से ज्यादा जब जरूरत होती है, तो पूरी फैमिली मिलके उस पीस को बनाती थी, झुरी को, बास्केट को। तो जब हमने कुछ एक स्टडी किया पता लगा कि पूरी फैमिली की इनकम पूरे साल भर में 19,000 वाज द मैक्सिमम इन द विलेज। सो मतलब कि कुछ तो गड़बड़ है कि इसमें क्या किया जाए, क्या बास्केटरी वालों के क्या किया जाए। तो वहां पे हमने अपना स्किल लगाया, हमने प्रोसेस को, वी डिवाइडेड द मेकिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट इनटू बाइनरीज, zeros and ones, into individual components of what is required to make that product। अब वो उसको समझने के बाद में समझ में आया कि भाई हमारी तरफ से तो हमने ये नॉलेज तो बता दी, लेकिन अगला तो इंटरेस्टेड ही नहीं है ना लेने के लिए, दूसरे को भी तो इंटरेस्टेड होना चाहिए। ये जो हम अपनी स्थान में सोच रहे हैं कि ये हमारी नॉलेज है और बड़ी अच्छी है, पर वो अगला जो इतने पुश्तों से काम करता आया है जिस तरह से, तो वाई शुड ही एक्सेप्ट इट बिकॉज मैं कह रही हूँ कि शायद आपको मार्केट बेटर मिले या शायद आपकी लाइफ इससे यू माइट बी एबल टू अर्न मोर। तो ये तो फॉर्मूला हमारा थोड़ा सा फेल हो गया। फिर जाके उनके साथ में रहना शुरू किया। मैंने जब जाके रहना शुरू करा, मेरी बेटी छोटी सी थी, आई थिंक एक लेडीज को हमारे जमाने में और भी ज्यादा था। मेरी बच्ची शायद आपके उम्र की है, अभी थोड़ी सी बड़ी होगी आपसे, तो आज के दिन में, तो वो उस समय वो छोटी सी थी और उसने तुतलाना शुरू कर दिया, शी स्टार्टेड स्टैमरिंग, क्योंकि वो मिस करती थी। मेरे हस्बैंड भी बहुत ट्रैवल करते थे अपने काम से, और एज लेडीज हमारा धर्म कर्म था कि फैमिलीज में बच्चों को, फैमिली को, मदर इन लॉ सबका ख्याल रखना, फैमिली को इकट्ठे जुड़ के चलाना। और यहाँ मैं इतना ट्रैवल कर रही हूँ विलेजेस में कि मेरी बेटी को डॉक्टर ने कहा कि इमोशनल इंस्टेबिलिटी की वजह से उन्होंने स्टैमरिंग शुरू कर दी। तो हम उनको अपने साथ लेके गए, जिस गांव में जहां हम जमीन पे सोते थे वहां लेके गए। 4 साल की थी मेरी बिटिया उस समय, और जब उन्होंने देखा कि जाने से पहले मैंने पूर्वी को बोला कि बेटा आपको ये समझना होगा कि माँ के लिए एक बच्चा सबसे इम्पोर्टेंट होता है, काम जरूरी है लेकिन ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर तुमको लगता है कि मैं क्या काम करती हूँ तुम देखो, और तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं करना, तुम्हारे साथ पूरा टाइम रहना है, सो मैं बहुत खुशी खुशी ये करूँगी। तो जब वहां गई और बच्चे ने देखा, मेरी बिटिया ने, कि चूल्हे पे रोटी बना रही हूँ मैं, पूरा गांव कभी वो बना रहे हैं कभी मैं बना रही हूँ। हम एक पेड़ के नीचे ट्रेनिंग करते थे, और रहने के लिए भी कोई जमीन पे सोते थे जहाँ सारे सोते थे, और हम दिन में एक ही रोटी खाते थे। तो एक बारी जब जाते थे तो 2 हफ्ते के लिए कम से कम वहां रहा करते थे। तो एक रैपो बनाया आर्टिसंस के साथ में कि भाई हम भी, ये नहीं है कि हम यहाँ से आ रहे हैं तो फिर आपकी बात नहीं समझ पाएंगे। सो मिल के जुल के हम भी आपको समझते हैं, आप भी हमें समझें, एंड दैट्स हाउ वी कैन ग्रो फर्दर। तो मेरी बिटिया ने आके बोला वापस आके, माँ मुझे लगता है कि आप मेरी माँ नहीं हो, आप इतने बड़े लोगों की माँ हो यहाँ पे।
सो मैं आपसे वो नहीं ले, आई मीन आई वॉज इन टीयर्स कि ये कितनी छोटे बच्चे को भी समझ में आता है कि कितना जरूरी है ये रैपो। सो इससे शायद मेरी लाइफ थोड़ी सी आसान हो गई, क्योंकि ये जो जर्नी या जो पर्पस मुझे लाइफ में मिला कि इन आर्टिसंस के साथ आगे बढ़ना है, रूरल एंटरप्राइज सेट करने के लिए जो भी कुछ की जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरत आफ्टर द स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग द स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग प्रोसेसेस, वाज मार्केट। अब वो मार्केट को किस तरह से उनके पास लाया जाए, हमने क्या किया कि बोला कि भाई आप लोग सामान बनाएं, मार्केटिंग आपको मुश्किल लगती है, हम आपकी पूरी मार्केटिंग की जिम्मेदारी लेते हैं, आप जो ये प्रोसेस हम बता रहे हैं इसके हिसाब से कुछ बनाइए और देखिए अगर क्वालिटी मेंटेन हो जाती है और आपको जिस तरह की इनकम मिलनी चाहिए, आपका जो हक है हमें लगता है, तो वो आपको अगर मिलता है, साल भर देखते हैं, साल भर में 1.5 साल में आई वुड से जो 24 लेडीज हमने ट्रेन करी थी वो 400 लेडीज में कन्वर्ट हो गई। एंड नॉट जस्ट दैट, जितना प्यार मिला इन लेडीज से। अब शुरू में थोड़ा मुश्किल होता था रूरल एरियाज में कि वो गांव के आदमी आके कई बार बोलते थे कि भाई तुम घर पे आओ, तुम्हारा गोश्त बना के खाएंगे, भाई तुम क्यों यहाँ बैठी काम कर रही हो, अभी तो घर में खाना बनाने का समय है या कुछ और समय है, इस तरह का कुछ। हमने जिस एरिया में हम काम करते थे वहां पे थोड़ी सी पॉलिटिकल भी थोड़ी सी हमें तकलीफ बीच में हुई थी। तो एक बार किसी ने गांव में आके हमको धमकाया कि ऐसे लिटरली कॉलर पकड़ लिया और कहा कि अगर आप हमारी औरतों को यहाँ खराब कर रही हैं, आप रातों रात चले जाइए, नहीं तो आप दिखेंगी भी नहीं, यहाँ मिलेंगी नहीं किसी को। सो मैंने सारी लेडीज को बोला कि देखिए मैं फिर वापस आऊंगी, आप लोग जो करें करते रहें और हमारी टीम भी बन जाएगी, हम लोग बाद में आएंगे, 6 महीने साल बाद जब भी आएंगे। कहाँ से, जहां ये लेडीज इतनी सबमिसिव थी, कहाँ से इनमें इतनी एनर्जी आई कि जाके उन्होंने घेराव कर दिया जो बहुत बड़े लीडर थे वहां के, बोले कि हमारी दीदी कहीं नहीं जाएंगी और ये भी रहेंगी और हम भी रहेंगे। मतलब द स्ट्रेंथ दैट दे हैड एंड एंड इफ जब आप अपने आप से प्यार करें और अपने काम से प्यार करें, जो अपने अंदर की एक एनर्जी निकलती है ना, इफ यू आर एबल टू अनलीश दैट, तो मुझे लगता है जो हमने बिजनेस उन लेडीज को दिया, जो हमने उनको अपनी नॉलेज शेयर करी और उनकी नॉलेज गेन करी, वो तो अलग हट करके है, पर एक जो स्ट्रेंथ उनके अंदर से निकली, उस दैट एम्पावर्ड मी एज एन इंडिविजुअल, आई थिंक वो स्ट्रेंथ हमें लगी कि हमें स्ट्रेंथ मिल गई कि ये जो हम कर रहे हैं कुछ सही कर रहे हैं। और आज की डेट में हमने काफी, अभी हम 4 स्टेट्स में काम करते हैं और काफी रूरल एंटरप्राइजेस बन गए हैं, सारे जो हैं वो हमारे थ्रू, हमारे कदम हार्ट एंटरप्राइज के थ्रू अपना सामान आज की डेट में बेचते हैं। कुछ ऐसे थे जिन्होंने अपने आप से अपना बिजनेस शुरू किया और उन्होंने आगे अपना बेचना शुरू किया, लेकिन वापस आके कोविड के दौरान उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपके साथ, तो अभी हमारे पास काफी लंबी लिस्ट है, कदम हार्ट की जर्नी खत्म नहीं हुई है, अभी हमारी तो टीम की सेकंड लेवल ऑफ मैनेजमेंट की ड्यूटी है अभी फिलहाल, टू टेक इट फर्दर। सो यस, ये थी हमारी जर्नी अबाउट बास्केटरी मेकिंग, जो हमें लगा कि सबसे एक डिफिकल्ट एरिया था जिस काम करने के लिए। तो आई थिंक बीइंग अ ट्रू आर्मी ऑफिसर्स डॉटर, आई probably wanted to take up the most challenging task, which I thought, and that would make me proud of the nation, and everything, and my people, and everything. Yes, I think I'm happy that I could share, and you gave this opportunity to share my story with everybody. Thanks, Abhishek. Well, truly, this was truly inspirational, full of challenges, but full of inspiration to us. I mean, as rightly pointed in the chat. Thank you so much, ma'am, for sharing this. Paresh sir, Khameer was started primarily गुजरात के 2001 के अर्थक्वेक के बाद, और अगर आज के संदर्भ में भी अगर हम लोग देखें तो आपदा के समय में एक अवसर ढूंढना बहुत कठिन काम होता है, और तब के समय में और आपदा के समय में एक अवसर ढूंढा आप लोगों ने, और वो भी अपने लिए नहीं, दूसरों की भलाई के लिए। तो ये जर्नी कैसी थी, क्या चैलेंजेस आए और आपने कैसे इन सबको सॉल्व करा, अगर आप उस बारे में हमसे शेयर कर सकें। So actually Khameer बिल्ड हुआ लेकिन 2005-06 में,
लेकिन उससे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन है आज भी कच्छ में, जो और शायद 30 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन है जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। कच्छ नवनिर्माण अभियान के नाम से वो ऑर्गेनाइजेशन आज भी काम करती है, और तब के टाइम में 97 या उससे पहले वो काम कर रही है कच्छ में। तो जब अर्थक्वेक हुआ तब के टाइम में बहुत सारे बाहर से लोग आए, ऑर्गेनाइजेशन आई यहाँ पे, जो अलग अलग प्रोजेक्ट, रिहेबिलिटेशन के काम, क्राफ्ट वर्कशॉप बिल्ड करने का काम, ये सब कुछ वो कर रही थी। लेकिन एक लॉन्ग टर्म जो काम हो, जो आर्टिजन के साथ जुड़ के उनकी जो नीड है उसको हम कैसे फुलफिल कर सकें, क्या क्या हम उनके साथ लंबे टाइम के साथ रह के उनके साथ काम करें या क्या, ये एक नीड खड़ी हो रही थी। क्योंकि यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी के साथ तो और भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो काम कर रहे थे, बहुत लंबे टाइम से वो काम कर रहे थे। लेकिन इसके अलावा जो टेक्सटाइल एंड जो नॉन टेक्सटाइल क्राफ्ट हैं, उन क्राफ्ट को सरवाइव करना है, उनको आगे ले जाना है, उन्हें सस्टेन करने के लिए क्या हम कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो उनके साथ काम करे। सो 2001-2 में ये चीज कहीं ना कहीं शुरू हो गई थी। कच्छ नवनिर्माण अभियान में क्राफ्ट रिसोर्स सेंटर CRC के नाम से एक छोटा सा हिस्सा था अभियान का, और तब के टाइम में हम लोग एक सर्वे करते थे। जैसे चौधरी सर बता रहे थे या पायल जी बता रही थी कि हम लोग जब विलेज में जाते हैं तो हम लोगों को मिलते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हो, क्योंकि तब के टाइम में हमें भी ये नहीं पता था, हमारी टीम को भी ये नहीं पता था कि हमें एक्चुअली ये डॉक्यूमेंटेशन सारा हो जाएगा, उसके बाद हमें क्या कैसे स्टार्ट हमें करना है चीजें। और 2005 में खमीर के नाम से जो कच्छ हेरिटेज आर्ट म्यूजिक इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज के नाम से ये खमीर शुरू हुआ। गुजरात गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था, उसके अंतर्गत ये शुरू हुआ, और हम जुड़े नेहरू फाउंडेशन डेवलपमेंट के साथ, और खमीर कैंपस जो है बिल्ड हुआ 2005 से 2009 के टाइम में। सो तब के टाइम में ये बहुत बड़े इश्यू थे कि लोग आते थे शॉर्ट टर्म के लिए, बहुत अलग अलग प्रोजेक्ट यहाँ पे करते थे लोग, उन्हें वर्कशॉप डेवलप करने के लिए सपोर्ट कर रहे थे, कुछ अलग अलग और जो मदद थी वो लोग भी कर रहे थे, कुछ ऑर्गेनाइजेशन थी कि उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही थी रॉ मटेरियल के लिए या इक्विपमेंट उनको देते थे। लेकिन वो जो सामान जो डेवलप होता था, उस सामान को आगे किस तरह से ले जाना है, उसको उसको उस क्राफ्ट को सस्टेन करने के लिए उसको एंड प्रोडक्ट है मार्केट। जब हम विलेज में जाते थे, जब हम सर्वे करते थे, लोगों को बोलते थे कि आप सब लोग आ जाओ, एक मीटिंग करनी है, तो ये चीज से थोड़ा लोग इतराते थे, अरे आप लोग आओगे, बातें करोगे और क्या आप हमारा सामान खरीदोगे, है ना। क्योंकि उनके लिए टाइम इतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो अपना टाइम छोड़ के हमारे साथ बैठ के बात कर रहे हैं कि इस गांव में इतने लोग अभी जो है वो काम कर रहे हैं। सो खमीर इस तरह से ये जर्नी स्टार्ट हुई। हमें एक चीज हमने उस चीज में हमने सीखा कि जब हम उनके साथ हमें काम करना है तो एक रेपो बिल्ड करना है, उनकी फैमिली के जैसे ही उनकी शादी में, उनके सुख में दुख में हमें पार्टिसिपेट करना है, तब जाके उनके वहां जाके खाना भी खाना है ना। तो वो तब हमें अपना सारा जो दुख है बताएंगे, और दैट वन इज ए बिग जर्नी वहां से स्टार्ट हुई। तब से लेके आज तक जो हमारे साथ जो आर्टिसन जुड़े हैं अलग अलग क्राफ्ट में, टेक्सटाइल एंड नॉन टेक्सटाइल क्राफ्ट में, कहीं ना कहीं हम ऐसे प्रोजेक्ट के साथ भी काम करते हैं जिसका रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक, उसकी रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक, है ना। जैसे कि कॉटन फार्म में जो ग्रो हो रहा है और कोई डिजाइनर उसके साथ काम कर रहा है, और कहीं कोई जगह वो शोकेस हो रहा है, उस ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट के साथ हम काम कर रहे हैं। बहुत अलग अलग इश्यू हैं इसमें, जैसे कहीं ना कहीं हम, बहुत सारे लोग हमें बताते हैं कि आप लोग लेदर, जानवर मर गया उसका लेदर जो निकालने वाले जो कम्युनिटी है उसको कैसे पकाने का काम है, एक समय था वो पूरा बंद हो गया है, खत्म हो गया है, नहीं चाहते हैं वो लोग फिर से उस चीजों में जुड़े हैं। ऐसे बहुत सारे इश्यू हैं कि शायद आगे जाने के लिए हमें रोकते हैं, हमें भी लगता है कि किस तरह से हम उस सारे इश्यू को हम सॉल्व करें। लेकिन
जो हमारी टीम है और जो हमारे फाउंडर मेंबर हैं, उनके साथ रह के हमने बहुत ये जर्नी स्टार्ट की, और आज हमारे साथ शायद 750 आर्टिजन यूनिट है, 1500 आर्टिजन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और ऐसे प्रोजेक्ट भी हैं जैसे काला कॉटन है, या यहाँ का लोकल लेदर है, या फिर यहाँ का लोकल वुल है, जो हाँ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आज लोग उसको समझने के लिए, केस स्टडी के लिए हमें लोग अप्रोच कर रहे हैं। या जी सर, बिल्कुल, मतलब काफ़ी इंसाइटफुल जर्नी थी ये। और ऑनेस्टली मतलब सभी की स्टोरी सुन के, सभी की जर्नी सुन के, फुल ऑफ इंस्पिरेशन। आई कैन अश्योर दैट एवरीबडी लिसनिंग हियर इज काफ़ी इंस्पिरेशनल ट्रूली। एंड किसी सर, एक सवाल मेरे मन में ऐसा था कि जब हम बिजनेस करते हैं तो हम सबको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बिजनेस एथिक्स को फॉलो करना, फेयर ट्रेड करना। पर आज के समय में अगर देखें तो ये लगभग निगलेक्टेड सा ही है। और स्पेशली क्राफ्ट सेक्टर में जब हम आर्टिसंस के बेनिफिट या क्लस्टर के रिवाइवल की बात करते हैं तो उसके साथ वैल्यूज अटैच्ड होती हैं, और उन्हीं वैल्यूज की वजह से ये सारी चीजें निगलेक्ट हो जाती हैं। ऐसे में कैपेसिटी बिल्डिंग, फेयर ट्रेड प्रमोशन, ये सारी चीजें कैसे इंश्योर करें, और वाकई में इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, अगर उस बारे में आप हमसे कुछ शेयर कर सकें। क्योंकि जयपुर रग्स इसमें फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का काफी साथ जुड़ा हुआ है और काफी काम करता है इस क्षेत्र में। तो अगर आप हमें थोड़ा सा बता सकें। देखिए, बिजनेसेस हैं तो दो तरह की कंपनी होती है पूरे दुनिया में। एक तो होती है कंपैरिजन कंपनी। कंपैरिजन कंपनी का मतलब ये है कि मैं इसलिए बड़ा हूं कि कोई दूसरा मेरे से छोटा है। अब वो इसलिए बिजनेस शुरू करता है कि कोई दूसरा आदमी सक्सेस हो रहा है, तो इट मीन्स उसके जो ओनर हैं, उनको चलाने वाले हैं, दे आर ड्रिवन बाय द इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, दे आर ड्रिवन बाय द फियर। और दुनिया में जितनी भी जो कंपैरिजन कंपनियां हैं, दे आर बोर्न टू डाई। उनका एक निश्चित समय होता है, उसके बाद वो कंपनियां धीरे धीरे बंद होने शुरू हो जाती है। एक कंपनी होती है ग्रेट कंपनीज, और ग्रेट कंपनीज के पीछे होता है कंपैशन, कि आप जो भी काम करते हो उस काम में आपको मजा आता है, आप उसको एंजॉय करते हो, वो आपका पैशन है। तो जब आप किसी भी काम को आउट ऑफ लव एंड कंपैशन करते हैं तो आप सभी लोगों को एक साथ लेके चलते हैं। जैसे जब मैंने शुरू में वीवर के साथ काम शुरू किया तो 9 साल तक मैंने एज ए कॉन्ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर काम किया। लेकिन तभी मुझे मालूम था कि मुझे मेरे कस्टमर में और वीवर में फर्क नहीं करना है। मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना है जहां मैं अपने एंड कंज्यूमर को अपने वीवर के साथ जोड़ पाऊंगा, क्योंकि मैं तो एक प्लेटफॉर्म हूं बीच में। पैसा देगा एंड कंज्यूमर, बनाने वाला ये है। मुझे दोनों को खुश रखना है। तो आपके सवाल का जवाब मेरी तरफ से यही है कि द वे वी सी द आर्टिजन, द वे वी सी द कम्युनिटी, द वे वी सी द कस्टमर, तो सबको एक साथ लेके एक प्लेटफॉर्म पे लाके अपने उनको चले। और एक जो इंसानियत है बिजनेस में, जैसे आपने इथिक्स की बात की, वैल्यूज की बात की, तो जब आप कंपैशन से ड्रिवन होते हैं तो फिर आप जो भी करते हैं वो दूसरी इंडस्ट्री के लिए इथिक्स और वैल्यूज बन जाते हैं। ट्रू, एक्चुअली एट द एंड ये सारी चीजें फिर एथिक्स और विजन पे ही आ जाती हैं। Adding on to this, ma'am, Kadam is known for making sustainable products using such raw materials and green packaging as well, which again is an essential part of business ethics. How, as a producer, do we understand this responsibility and make our contribution to it, even after we know like this is very difficult to implement and easier to neglect if we talk about the short run? How do we actually understand this? What are your views on this? I don't know if I've understood the question correctly, but I think what you're talking about is making a sustainable product for a producer and understanding the importance by the producer of how sustainable product making is important. अगर आपको मैं एक बात बताएं कि जो क्राफ्ट सेक्टर में सस्टेनेबिलिटी की इंपॉर्टेंस बताने की जरूरत है ही नहीं।
अगर जरूरत है बताने की तो वो मार्केट को बताने की जरूरत है. हाँ, there are few things which are important, like for example in terms of packaging. अगर आप गांव में जहाँ काम होता है तो वहाँ पे वो it comes naturally that you put a plastic, you wrap it in a plastic because plastic is easily available now. अब how should I say this? How should I say this? Like for example, if you have as a producer, we working with the producers in the rural areas who are making a basket. जब उसको वो पैक करके लेके आते हैं हमारे ऑफिस में जो भी दिया है, तो वो एक प्लास्टिक के झोले में, बड़े से झोले में बांध के लेके आते हैं, क्योंकि वही अवेलेबल है उस वक्त वहां पे मार्केट में. जो अवेलेबल है उनके इकोसिस्टम में वो उसी चीज को लेके आएंगे. लेकिन हमारे मार्केट को अब समझ में आ रहा है कि भाई सस्टेनेबिलिटी के लिए सिर्फ एक प्रोडक्ट की नहीं जरूरत, पैकेजिंग भी जरूरी है. सो उसके लिए स्टार्टअप्स की जरूरत है इस वक्त, आई फील सो, जो कि नॉट जस्ट हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में बट हैंडीक्राफ्ट सेक्टर के इकोसिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करें, जिसके लिए थोड़ी टेक्नोलॉजी की जरूरत है टू मेक सस्टेनेबल पैकेजिंग. अगर हम सस्टेनेबल पैकेजिंग अभी आ रहा है, आई हियर अ लॉट ऑफ इट इन बैंगलोर, ऑफ अवेलेबल. अब ये करंट की बात करें और अगर पुरानी बात करें तो आम भी, अगर आप बंगाल में, अगर आप, आई एम फ्रॉम बंगाल, आई लिव इन बंगाल, माय ऑफिस इज इन बंगाल, तो वहां पे सब अभी भी आपको चाय प्लास्टिक में तो अभी जाके मिलनी शुरू हुई है, बट मेजॉरिटी वो एक मट्टी के कुल्हड़ में मिलती है चाय. सो अगर आप मुड़ी खाने जाएं तो एक वो रिसाइकल्ड न्यूज़पेपर होगा, वो रैप होगा, उसके अंदर में वो मुड़ी या झाल मुड़ी बना के आपको देंगे. सो दैट वाज द वे ऑफ लाइफ, बट इट्स जस्ट चेंज्ड, for economic reasons or whatever, it changed to plastics. So अब slowly, because उसकी जागरूकता आ गई है, packaging raw at the producer level, the new eco packaging इतनी आसानी से नहीं मिलती है, which is required by the market. But there is a need, I think, and I see a lot of young startups working with technologies who are working on this. I don't know if this answers your question, Abhishek. Yes, ma'am. Perfectly. Perfectly. Yeah. Paresh sir, what are your views on this? इस पे कैसे हम डेवलप कर सकते हैं कि सस्टेनेबल पैकेजिंग की ओर, जैसा मैम ने बोला कि हम कुछ कॉन्शियस एफर्ट्स लें जो हमको इसकी ओर लेके जाए. आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? नहीं, उनकी बात बहुत सही है, लेकिन अभी जैसे कि मैं कुछ और बात बताऊंगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम सब जो लोग हैं क्या कर रहे हैं. जो क्राफ्ट स्किल है उसमें एक हम नयापन ला रहे हैं, एक नया रंग हम उसमें दे रहे हैं कि भाई जो आप ट्रेडिशनली जो करते थे वो एक कम्युनिटी में चल रहा है, वो बहुत अच्छे से बिक रहा है. लेकिन अगर अर्बन मार्केट में जाना है तो कहीं ना कहीं उसके शेप अलग हो जाएंगे. वही मिट्टी का जो पॉट है वो छोटा बड़ा होगा और उसका 100% उसके ऊपर डिजाइन इफेक्ट 100% होगी, क्योंकि अभी जैसे कि पूरी इंडिया में 150 से ज्यादा डिजाइन स्कूल हैं जो अलग अलग क्राफ्ट क्लस्टर को लेके वहां पे जो आर्टिजन स्किल क्या है उसको क्या हम नयापन लाएं, उसमें सब बहुत काम कर रहे हैं. हाँ, पैकेजिंग, अगर आप कोई एक प्रोडक्ट बना रहे हो, हमारे यहाँ कच्छ में एक क्लस्टर है रेहा, जहाँ पे बहुत सारे आर्टिजन है जो नाइफ बनाते हैं और उसका नाइफ का लोकली बहुत बड़ा मार्केट है. लेकिन उसको हमने एक अच्छी तरीके से एक अच्छी फॉर्म में उस नाइफ को हमने बनाया. एक एनआईडी डिजाइनर ने उसके ऊपर बहुत अच्छे से काम किया, उसका पैकेजिंग किया. आज उसका एक धीरे धीरे मार्केट खुल रहा है और लोगों को काम मिल रहा है. सो पैकेजिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कहीं ना कहीं डिजाइन के साथ वो जुड़ा हुआ है स्ट्रांगली, कि आप कोई प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हो साथ में उसका पैकेजिंग या उसका उस किस फॉर्म में वो बन रहा है तो उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा, उसका पैकेजिंग भी. और अभी के टाइम में जब ये पैंडेमिक का टाइम है, जब हम जो ट्रेड हो रहा है वो ऑनलाइन हो रहा है, तो लोगों के हाथ में वो प्रोडक्ट पहुंचती है, तो पैकेजिंग इज ए बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है. बिल्कुल बिल्कुल सर, सही बात है. और इसी पे डेवलप करते फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में एक चीज है कि हम जेंडर इक्विटी कितनी रखते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, विमेन पार्टिसिपेशन पर्टिकुलरली. सर जैसे आपने हाईलाइट करा कि 80% विमेन हैं अभी जयपुर रक्स में और अवार्ड्स लेके आई हैं काफी सारी विमेन इंटरनेशनल लेवल पे.
पर जब आपने इसकी शुरुआत करी थी तब चीजें ऐसी नहीं थी, ये एक मेल डोमिनेटेड क्राफ्ट थी और वुमन का पार्टिसिपेशन जनरली समाज में इतना ज्यादा नहीं था। फिर क्राफ्ट सेक्टर की बात करें तो और भी कम था। तो ये आपने कॉन्शियस एफर्ट्स कैसे लिए और इसको कैसे डेवलप करा, अगर वो जर्नी आप थोड़ी हमारे साथ शेयर कर सकें। देखिए, जब मैंने 2 लूम लगा के अपने घर से शुरुआत की थी इस धंधे की, तो उस वक्त काम करने वाले सारे जो वीवर थे वो सारे मेल थे। तो मैं देखता था वो क्वालिटी सही नहीं बनाते थे, डिसिप्लिन नहीं थे, छुट्टियां बहुत ज्यादा करते थे, एडवांस वगैरह मांगते थे। फिर धीरे धीरे कुछ वुमेन की शुरुआत हुई, तो मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गया कि इस समस्या का समाधान है कि अब मुझे हमेशा वुमेन रखनी चाहिए कि वुमेन मोर डिसिप्लिन रहती है, अच्छी तरह काम करती है, बात को सुनती है। तो एक तो मेरी यहाँ से शुरुआत हुई। फिर क्या था कि मेरे सबसे पहले मेरे 5 बच्चे हैं, तो जिसमें सबसे पहले जो तीन बेटियां हैं, तो जब 3 बेटियां हुई तो परिवार के लोग वाइफ को थोड़ा हीन नजरों से देखते थे, उसको बोलते थे तुम्हारी तो तीन बेटियां हैं, बेटा नहीं है। तो मुझे वाइफ को समझ में नहीं आता था कि मतलब ये बेटियां होने से क्या तकलीफ है। फिर वो जो अंग्रेज दोस्त आइले कोपर, उसको हमने पूछा कि भाई इस समस्या को कैसे हल किया जाए, क्योंकि वाइफ बहुत अपने आप को हीन महसूस करती है। तो उसने बोला कि ये जो तुम्हारे समाज में जो ये कल्चर है कि बेटे और बेटियों के बीच में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो आपके जो बॉय चाइल्ड है ये गेट स्पॉइल्ड और बेटियां पीछे रह जाती है। तो उसने बोला कि यू आर वेरी लकी, कि तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारी 3 बेटियां हैं, क्योंकि वुमेन आर मोर रिसेप्टिव एंड मोर एफिशिएंट। तो उसकी बात को मान के फिर मैंने तीनों बेटियों को अमेरिका पढ़ने के लिए भेजा। और आज मुझे बताते हुए अच्छा लग रहा है कि जो मेरी जो पहले वाली बेटी है, शी इज वन ऑफ द बेस्ट वुमेन सीईओ इन यूएसए, और इस साल उसको यूएसए में अर्नस्ट एंड यंग के एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर में भी फाइनलिस्ट में सिलेक्शन हुआ है। तो शुरू से क्या है कि जो बेटियों ने जो अच्छा, जब इंडिया आके जो इतना अच्छा काम किया, फिर मैं काफी पढ़ता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। जब जयपुर, तो फिर मैंने देखा कि ये जो वुमेन है, ये स्कूल नहीं जाने की वजह से ना, वो एक दिमाग में स्ट्रक्चर नहीं आया, इनका दिमाग पोल्यूटेड नहीं हुआ। तो इनको एज इट इज देखने की क्षमता है इन वुमेन के अंदर। तो तभी तो आज मतलब जो इतने सारे ग्लोबल अवार्ड ये सारी वुमेन ला चुकी है। और अभी हमने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, सेल्फ मैनेजमेंट। ये ग्रास रूट पे पहला मतलब हिस्ट्री में ये प्रोजेक्ट है कि ये वुमेन कैसे मतलब सप्लाई चेन के जो डिसीजन मेकिंग है वो करे, जीरो डिफेक्ट, जीरो वेस्टेज, 100% ऑन टाइम डिलीवरी कैसे करें। उसके लिए अभी हमने एक नया प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि शुरू से ही मुझे इसका अभ्यास था, और अब मैं एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इन वुमेन के अंदर जो एक कैपेबिलिटीज है, ये पढ़ी लिखी वुमेन, बिना पढ़ी लिखी वुमेन, उस पे अभी हमें उस रास्ते पे बहुत लंबा जाना है। बिल्कुल सर, ट्रूली मोटिवेशनल ऑनेस्टली। मैम, कदम की बात करें तो कदम हैज over 70 women producer groups, and as you rightly pointed out, you were facing constant threats from the male dominated society, and even after that, even with social challenges on ground in this regard, you took conscious efforts to involve more and more women into Kadam. How did you make it possible? What was the journey like? Yeah, I would be very happy to talk about this. Me being a woman, and I have only one daughter, and I'm so proud of my daughter. Right now, she's a global HR manager, and she's creating global HR leadership policies with 15 countries for her company. So yes, so that makes me extremely extra proud to talk on this topic. So अब आपको अगर बताएं कि गांव की लेडीज की बात करें, तो हमने क्या किया कि हमें समझ में आया कि गांव में देखिए, हम बिल्कुल या तो हम पूरा वहां उतर जाएं, हम एक हार्मनी में अगर काम करना है, ताकि वो लोग, जैसे हम सारी की सारी टीम पूरी की पूरी टाइम कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन एक दिन में तो ला नहीं सकते माइंडसेट में ऑफ द सोसाइटी। तो हमने क्या किया कि
यूथ को लेके चलेंगे, बिकॉज यूथ, यंग बॉयज जो बेटे हैं इन लेडीज के, जो भाई हैं इन लेडीज को, उनको साथ के 15% ऑफ कंप्राइज जो हम एसएचजी बनाएंगे, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एसएचजीज है उनको लेके हम नहीं चलते। हम अपनी एसएचजी, उसको हम बोलते हैं सीआईजी, कॉमन इंटरेस्ट ग्रुप, हम एक खुद से बनाते हैं। और वो जो कॉमन इंटरेस्ट ग्रुप होता है उसमें आदमी, औरत, डिफरेंट कम्युनिटी, कास्ट सब इकट्ठे होते हैं। आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हमने देखा कि एक प्रोडक्ट हम क्या नाम है, टॉवल बास्केट, उसकी डिमांड ज्यादा है। हमारी मार्केट स्टडी हुई, टॉवल बास्केट की डिमांड काफी है, छोटी सी बास्केट है। और इसको बनाने के लिए अगर एक पर्टिकुलर प्राइस में बनानी है, तो हमने देखा कि पहले तो जो लेडीज हैं वो बहुत सुंदर बास्केटरी करती हैं। कुछ लेडीज हैं जो उसकी रस्सी बनाती हैं, घास को तोड़ के सुखा के उसकी रस्सी बनाती हैं, कुछ बास्केटरी बनाती हैं। तो स्किल लेवल अलग हो गए लेडीज के। और आदमी जो है, कुछ ब्लैकस्मिथ्स हैं जो कि फ्रेम बनाते हैं गांव में, कुछ हायर कास्ट के आर्टिसंस हैं, यूथ, जो हैंडल बनाते हैं लकड़ी के। सो अब इन सब के स्किल सेट को इकट्ठे करा के एक हमने सीआईजी बनाया। अब उसमें ये औरत है या आदमी है, या अपर कास्ट का है कि लोअर कास्ट का है, हीरो क्या है, टॉपिक जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो सिर्फ रहेगा टॉवल बास्केट। क्योंकि टॉवल बास्केट की अगर ये लोग 1000 पीस हर महीने पर महीने, अगर हर महीने की पूरी टीम मिलके प्रोडक्ट बनाएगी, तभी जाके पूरी टीम को जो है पैसा जो है 10,000 रुपये महीना हर आदमी को मिल जाएगा। सो द हीरो बिकेम, बिकॉज सबकी नीड जो थी वो आर्थिक नीड तो थी, इकोनॉमिक नीड तो थी। सो यस, इट इज नॉट एन ईजी स्टेप टू इंश्योर कि everybody was working towards a team where the intent of the hero was the product which is bringing livelihood. तो क्या है कि बोलते हैं ना, idle mind is a devil's workshop। तो मेरा ख्याल है उस वजह से दिमाग सबके इकट्ठे एज ए टीम चलता था कि हम इसको 1000 पीस को हम 1500 पीस कैसे बनाएं ताकि हमारी टीम को और पैसे मिले, या इसके ऊपर में होता था हम इसके ऊपर इनोवेशन कैसे करें। So the whole topic of discussion was not about discrimination, but was about working on that, the hero of which bound them together. So I think ऐसे models, yes of course बोलना बहुत आसान है इस वक्त, but करना इतना आसान नहीं होता। इस स्टेज पे पहुंचने के लिए हमें 1 साल लग जाता है, while हमारी टीम पूरी फील्ड में पोस्टेड रहती है और धीरे धीरे काम करती है। जब हम शुरू में ट्रेनिंग करते हैं तो उस वक्त तो एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के साथ इकट्ठे आज की डेट में भी नहीं बैठती है ट्रेनिंग करने की। तो ये है, तब भी थी इशू, अब भी है इशू। लेकिन आई गेस इट्स जस्ट, जैसे हम सब यही बात कह रहे हैं कि अगर इंटेंट स्ट्रांग है तो वो जो 6th सेंस होती है ना, वो बहुत जल्दी कनेक्ट होती है। और एक जो कॉमन फीचर है विच इज द पैशन एंड द कंपैशन दैट यू हैव, that is what breaks the barriers and it makes it possible to convert it. So our model also, right now we have 85% women and 15% youth that we work on making, and hamare liye ek particular craft is not the hero, but a combination of crafts to make a product which will sell as the hero. And then the marketing team's job is to ensure the group that has said 1500 pieces or 1000 pieces a month, to ensure that they actually get 1500 pieces का ऑर्डर हर महीने। तो मार्केटिंग टीम हमारी जो है कदम हार्ट को, उनको भी उतनी मेहनत करना पड़ता है अलग स्पेस में टू इंश्योर उनको इतना मिले विदाउट ब्रेकिंग। और सबकी एस्पिरेशनल इनकम, सबकी कितना टाइम देना चाहते हैं उस प्रोजेक्ट को, उसको सबको लेके साथ में चला जाता है। वी क्रिएट दिस मॉडल। ट्रू, very innovative model actually, as rightly pointed out, and it seemed easy, but I can guess that it must have been very difficult to implement this. सर, परिसर खमीर में भी ऐसी कई क्राफ्ट यूनिट्स हैं जिसमें सिर्फ विमेन ही वो क्राफ्ट यूनिट चला रही हैं, और ऐसे में वहाँ पे, क्योंकि कच्छ की ज्योग्राफी भी थोड़ी डिफरेंट है, वहाँ पे ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? आप अगर कुछ शेयर कर सके। हाँ, देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं कि जो पूरा प्री प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं बहनों के हाथों से होता है। आप जैसे कि कच्छ की बात करें तो कच्छ में बहुत बड़े नंबर हैं, शायद 65,000 से ज्यादा जो बहनें हैं जो टाई एंड डाई का काम करती हैं। जो सबसे बड़ा क्राफ्ट है कच्छ में, जो टाई एंड डाई का क्राफ्ट है, और उसमें शायद 65,000 से ज्यादा बहनें हैं जो टाई एंड डाई का काम कर रही हैं, जिसमें एक्चुअली जो टाई एंड डाई जो है वो कहीं ना कहीं भाई भी कुछ एरिया में जो है, जो मेन है वो भी टाई करते हैं, लेकिन बहनें हैं जो शायद 99% से ज्यादा बहनें हैं जो टाई एंड डाई का काम करती हैं।
वीविंग में एक पूरा प्रोसेस है, शायद 55% से ज्यादा जो है वो पूरा प्री प्रोसेस है जो बहनें करेंगी। आप देखेंगे तो चाहे उसका ताना निकालना है ना, उसको स्टार्च करने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं मैन के साथ कंधे से कंधा मिला के ही वो काम करेगी। कभी कभी तो वो जो उनके हस्बैंड है वो भी बताते हैं कि नहीं, अगर मेरी वाइफ नहीं काम करेगी तो वो ताना निकालेगी तब मैं वीविंग कर सकता हूँ, क्योंकि वो ताना मुझे निकालना नहीं आता है। यहाँ पे सबसे बड़ा जो चैलेंज है कि जो सबसे बड़ा हार्ड वर्क है, पोट्री की बात करें तो वो मिट्टी जब कुम्हार एक जगह से उसके घर के पास लेके आता है, उसको पीटना है, उसमें से कंकर अलग करने हैं, है ना, उसमें से पतली वाली सॉफ्ट मिट्टी को अलग करना है, उसकी जो परख है वो बहनें समझती हैं। वो जो भाई है कहीं ना कहीं वो पूरी प्रोसेस में कहीं जुड़ा है, लेकिन जो उसमें सबसे बड़ी जो समझ है वो बहनों का काम है। सो सारे ऐसे क्राफ्ट हैं, उसमें से लेकर टर्न वुड का काम है, दैट वन इज ए, क्योंकि एक टाइम था कि हमें भी ये सारी चीजें नहीं पता थी, हम खुद भी चाहते थे। और एक बार मैं निरोना करके विलेज है जहाँ पे लेकर आर्टिजन जो बहनें हैं उसमें जो रंग बनाने का काम है, लाख के साथ जो वो पाउडर रंग मिक्स करते हैं, तो वो लेकर को जलाना पड़ता है तब जाके वो मेल्ट होता है आग में। और वो बहनें कोई भी ऐसा इक्विपमेंट या कोई भी ऐसी चीज के बिना वो अपने हाथों से मिक्स करती हैं एक वुड की स्टिक के साथ। और कभी कभी बहनें बोलती भी हैं कि ये हम मिक्स करते हैं तो तब कभी कभी हमारी स्किन भी उसके साथ मिक्स हो जाती है, तो इतना वो जल जाता है कि वो पूरी प्रोसेस उनको करना है। और जब हम भाइयों को बोलते हैं कि यार ये आप करो ना, हम लोग आए हैं, ये प्रोसेस हमको देखनी है, तो वो करना वो नहीं चाहते, वो बोलते हैं ये तो बहनें करेंगी, इसमें तो हमारा हाथ जल जाता है। सो कहीं ना कहीं आप पूरे इंडिया में आप देखेंगे कि मैं बहुत जगह मैंने देखा है कि शायद जितना आदमी काम करता है उससे कहीं ना कहीं ज्यादा बहनों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है। एक चीज मैं और बताऊंगा आपको, हमने 2007-8 में रिसाइकल प्लास्टिक प्रोजेक्ट का काम शुरू किया। जो वेस्ट कचरा है, गार्बेज जो हम लोग फेंक देते हैं, सो हमारे यहाँ एक डिजाइनर आई और उन्होंने कहा कि कच्छ में इतना सारा वेस्ट प्लास्टिक है, तो क्यों ना इस प्लास्टिक को उठा के इसमें से कुछ नई चीजें डेवलप की जाए। उन्होंने अपनी कुछ स्लाइड दिखाई और हम सब लोगों ने देखी, लेकिन हमने कहा कि हम तो एक क्राफ्ट स्किल के साथ काम कर रहे हैं, ट्रेडिशनल जो घर पे जो काम करने वाले लोग हैं उस स्किल को हम उसमें से प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं और बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं वो तो सब चीज ठीक है, लेकिन क्या हम ये पूरा जो गार्बेज है उसमें 40 माइक्रोन से कम का जो प्लास्टिक है, क्यों ना हम उसको उस एरिया से उठा के उसको साफ करके उसको काट के फिर से उसको वीविंग करके उसमें नई प्रोडक्ट डेवलप की जाए। सो आप khameer.org पे अगर जाएंगे या shop.khameer के ऊपर .khameer.org के ऊपर आप जाएंगे तो रिसाइकल प्लास्टिक की पूरा जो ये प्रोजेक्ट है ये सब बहनों के साथ जुड़ा हुआ है। मोर देन 100 बहनें हैं जो ये कचरा इकट्ठा करती हैं भुज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ, और वहां से हमारी टीम वो प्लास्टिक लेके आती है, उसको साफ किया जाता है, उसको कटिंग करने वाली बहनें भी हैं, देन उसको वीविंग कर रही हैं जो बहनें। उसमें से कुछ एंटरप्रेन्योर भी खड़े हुए हैं, जैसे कि राजी बहन है, आप देखेंगे कि कच्छ में से जो जैसे पाबी बहन है उसी तरह से राजी बहन को भी हमने एज ए एंटरप्रेन्योर हमने खड़ा किया है कि वो एक वुमेन ग्रुप को तैयार करे और वो वही जो गार्बेज है उसमें से क्यों एक खूबसूरत प्रोडक्ट जो एक लेवल का जो स्किल वीविंग स्किल उनको आता है उसमें से क्यों नहीं वो नई प्रोडक्ट डेवलप करके मार्केट को प्रोवाइड कर रही है। और बहुत सारे लोग इसमें से अर्न कर रहे हैं कचरे में से पैसा, लेकिन जो ये जो पूरा प्लास्टिक प्रोजेक्ट है उसमें सब बहनें जुड़ी हुई हैं। सो कहीं ना कहीं क्राफ्ट स्किल के साथ उसको सस्टेन करने के साथ बहनों का बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अभिषेक एक चीज मैं और भी आपको मैं बताना चाहूंगा। जी सर। मैं पिछले 4 साल से ट्रेड विंग को हेड कर रहा हूँ खमीर में, और 2 रोल होते हैं। एक रोल जो है हमें प्ले करना है आर्टिजन के साथ ग्राउंड में विलेज में जो हमारे साथ काम कर रहे हैं,
एक रोल हमें प्ले करना है आउट ऑफ इंडिया, सॉरी आउट ऑफ मार्केट के साथ। जो विलेज के बाद जो अर्बन में लोग हैं, जो खरीदार हैं, जो उस चीज में से डिजाइन कर रहे हैं, उसको आगे बेच रहे हैं। सो जो क्राफ्ट बेचने वाले भी जो लोग हैं, उसमें से शायद 80% से ज्यादा लोग हैं वो बहनें हैं। पायल जी, आप शायद इस चीज से, क्योंकि हमें रोज कॉल आते हैं, रोज हम जिन लोगों को ईमेल करते हैं, उसमें से जो खरीदने वाले या जो डिजाइनर हैं, कहीं ना कहीं बहनें हैं जो वो रोल प्ले कर रही हैं। बहुत सारे ऐसे अलग अलग फॉर्म क्रिएट हो गए हैं कि जो छोटे छोटे यंग डिजाइनर क्रिएट हुए और अपने छोटे लेबल शुरू किए और आज एक बड़ा फॉर्म वो कर रही हैं। सो बहनों का बहुत बड़ा रोल है इस क्राफ्ट स्किल में, शायद उनके बिना इसको चीज को आगे ले जाना भी मुश्किल होगा। I would just like to add, बहनों का रोल है परेश जी, I totally agree, और वो है। पर मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के कि ये डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म में, जब हम इंस्टाग्राम अभी हमने रिसेंटली शुरू किया है, तो हम देखते हैं 45% men are participating and viewing and 55% women, which means हमें बहुत अच्छा लगता है कि जो बैलेंस सोसाइटी जिसकी तरह हम बात कर रहे हैं ना इन टर्म्स ऑफ अ मार्केट, शायद कहीं दिख रहा है कि वो हो रहा है। यस, और वो भी क्राफ्ट की वजह से। हाँ जी। Absolutely. सो एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि 2016 के बाद, जैसे कि जो हमारा प्रोजेक्ट है काला कॉटन प्रोजेक्ट, 2008-9 में जब हमने ये बिगिनिंग किया, तब हमने यहाँ का लोकल कॉटन हमने परचेज किया था। तो हम चाहते थे कि उसको एक स्केल पे हम बड़ा करें, और हम चाहते थे कि क्यों ना कहीं वो कॉटन को हैंड स्पिनिंग किया जाए। और तब से लेके 2008-9 से लेके आज जो है उसमें हाथ से जो पेटी चरखा, जिसे हम बॉक्स चरखा भी बोलते हैं, उसमें 100 जितनी बहनें हैं 7 विलेज में जो कॉटन हैंड स्पिनिंग का काम करती हैं, काला कॉटन का। और वैसे ही यहाँ का जो लोकल वूल है उसमें 125 बहनें हैं जो आज वूल स्पिनिंग का काम कर रही हैं। सो दिस इज या बिल्कुल सर, मतलब heads off to all the women, honestly, they're truly inspiring despite all the challenges that they face. अब एक चीज जो मेरे मन में आई कि जितने भी सारे चैलेंजेस आप लोगों को आपकी जर्नीज में आए हैं, उनके सोल्यूशन ढूंढने में अगर एक निष्कर्ष देखें, एक कंक्लूजन देखें, एक एसेंस देखें, तो वॉज कि हमारा आइडिया, वैल्यू, पैशन क्या था वो काम करने के पीछे, तो सोल्यूशन अपने आप मिल गया। तो अगर आप लोग अब अपनी एक ऐसा वैल्यू सिस्टम जो आपने फॉलो करा है, जिसने आपको इस जर्नी पे साधे रखा है, वो हमसे शेयर कर सकें तो। और साथ ही साथ एक और चीज की, जो यंगस्टर्स इस फील्ड में स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ इम्पैक्ट लाना चाह रहे हैं किसी भी फील्ड में, उनके लिए अगर जो एडवाइस आप अपनी जर्नी से देना चाहेंगे, तो वो अगर आप हमें बता सकें। एंड किसी सर प्लीज। देखिए, सबसे है कि मतलब आई मस्ट लव माई सेल्फ एंड आई मस्ट लव व्हाट एवर आई डू, फिर आगे की जर्नी आसान होती जाती है। वेरी ट्रू मैम, इफ यू कैन। I totally agree, totally 100% with जब एनके चौधरी जी ने जो कहा, बट एक चीज और मैं इसमें ऐड करूंगी कि हर इंसान में एक ना एक स्ट्रेंथ होती है, हर एक स्ट्रेंथ और वीकनेस हर एक इंसान में होती है। टू अंडरस्टैंड वंस स्ट्रेंथ एंड टू मेक पीस विद वंस वीकनेस, एंड देन डू द सेम विद ऑल द स्टेक होल्डर्स that you have. हर आदमी में जो स्ट्रेंथ है उसको पकड़ के लाके strengthen the strength of every individual, and जहाँ कोई कमी है that you try and bring, जो किसी और की वो जो कमी है किसी और की स्ट्रेंथ हो, and combine together. So I think पूरी society nurture हो सकती है, और पूरी आपकी society, I mean the society of working in your space, you can make a difference, and it's a very happy journey then, because nobody is less or more. Everybody is beautiful in their respect, which is respected by the others. Very true, man. Paresh sir, if you can highlight ऐसी एक कोई वैल्यू। देखिए, एक चीज मैं बताऊं आपको, जैसे आज भी कहीं ना कहीं हम शायद जब हम विलेज में जाते हैं तो हमें ऐसे बहुत सारे आर्टिसन मिल जाते हैं जिनकी स्किल तो है,
स्किल है, बहुत अच्छा काम करते हैं, तो उनको एक जगह एक नहीं मिली, लोगों तक वो नहीं पहुंचे हैं। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हम ऐसे लोगों तक पहुंचे और उनको एक हम बढ़ावा दें कि क्या उनकी जो स्किल है उसको हम एक अच्छापन लाके लोगों के सामने प्रेजेंट हम किस तरह से कर सकते हैं। तो दैट वन इज ए, हाँ, लेकिन कम्युनिटी के साथ जब आप घुल मिल जाते हो तो आपके लिए खुद ब खुद एक रास्ता मिल जाता है कि आपको भी वो लोग अपना समझते हैं और शायद आप बहुत अच्छा कर सकते हो, जैसे सर ने बताया। बिल्कुल बिल्कुल सर, truly inspiring, and I know everybody is going to carry these values all through their lives. Thank you so much, ma'am and sir, for taking time out of your schedules and joining us for this very insightful session. Uh, I'm very sure that all of us here are so inspired by your journeys that, to be honest, all of us are eagerly want to follow in your footsteps to create an impact in this world. If there is anything you wish to tell us, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं before we culminate this hour full of inspiration, so please go ahead. एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जी सर। क्योंकि बीच में मैंने डिजाइन की बात भी कही थी और पायल जी भी बता रही थी कि पैकेजिंग इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोर देन 150 डिजाइन स्कूल हैं पूरे इंडिया में, जो कहीं ना कहीं उनके उनके सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं क्राफ्ट स्किल या ऐसी सारी चीजों को वो लोग पढ़ाते हैं। जब उसमें से जो लोग पढ़ के बाहर निकलते हैं, यंग पीपल, चाहे वो आर्किटेक्ट हो या कोई फैशन के स्टूडेंट हो या फिर डिजाइन के स्कूल स्टूडेंट हो, वो सब लोगों की वजह से शायद आज टेक्नोलॉजी सबके हाथ में है, टेक्नोलॉजी हाथ में है। इस वजह से छोटे से छोटा आदमी कहीं ना कहीं ऐसे डिजाइनर जो अपना खुद का कुछ छोटा सा लेबल शुरू कर रहे हैं, खुद का ब्रांड शुरू कर रहे हैं, उसकी वजह से वो लोग उनके टच में आ रहे हैं। और थैंकफुल टू ऑल ऑफ ऐसे स्टूडेंट जो उनके साथ डायरेक्टली सामान परचेज कर रहे हैं। हमारा काम है कि वो जो क्राफ्ट स्किल है वो सस्टेन हो, है ना। सो उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा कि वो उन सब लोगों के साथ वो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, उनको काम दे रहे हैं। दैट वन इज ए थैंक यू। I just like to add one thing, to the youngsters of today. You all are so inspiring that you are wanting to walk this journey. I mean, it's amazing, and we feel that the future of craft is secure. क्योंकि आप जैसे बच्चे इस तरह का डिफिकल्ट फील्ड ले रहे हैं, और टू नो द रियलिटी, जस्ट वन थिंग आई लाइक टू, आपने कहा कि अगर हम कुछ एडवाइस देना चाहे, बड़े बुजुर्गों की तरह हमें आदत है व्हाट टू डू, तो हमने भी सुनी है और अभी हमको सुनाना भी अच्छा लगता है। तो क्या है कि रियलिटी, जो ग्राउंड रियलिटी है, उसके लिए थोड़ा सेंसिटिव होना बहुत जरूरी है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हमारी प्रोडक्शन टीम में भी यंगस्टर्स हैं, मार्केटिंग टीम में अभी हमारी टीम में यंगस्टर्स हैं, कॉल जी हमारी प्रोडक्शन टाइम पे नहीं होगी क्योंकि जो है गांव में मुर्गी चोरी हो गई, तो पूरा का पूरा गांव ने काम करना बंद कर दिया, जब तक वो समाधान नहीं हो जाता उस प्रॉब्लम। सो दीज आर इश्यूज व्हिच एग्जिस्ट करेंटली, दीज आर रियलिटीज। अभी बिकॉज हाउ EQ, emotional quotient, can be married with the intellectual quotient. How IQ and EQ can be brought together in a very sensitive fashion. I think it depends on you all, and I'm sure you all will do a good job. It's the fact that you all have planned a conclave like this, and it's inspiring, and more power to you all. I'm truly because of inspirations like you. Sir, अगर आप कुछ कहना चाहते हो। बस मुझे क्या, आपकी ये टीम बहुत बहुत अच्छी लग रही है, मतलब दे आर द ब्राइटेस्ट माइंड। पहली बार इतने ब्राइट माइंड देख रहा हूं मैं। और मैं ये बताना चाहूंगा कि दैट सबसे पहले ये डिफाइन करना चाहिए कि हु एम आई, व्हाट इज माय कोर। जब कोर डिफाइन हो गई तो द डीपर यू गो इनटू योर कोर, you are making harder and harder for your global competitors to copy you. Bilkul true. Thank you so much again for joining us. We are very grateful and look forward to host more such sessions. Thank you so much for inspiring us.
Very Thank you grateful. very much. Thank you, Abhijit. Thank you, Veera. sir. Yes, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Bye. Have a great day. Thank you. Thank Thank you. you.